Good morning, all of you. Today's lectures on vectors. Last lecture we will discuss about the vectors. What is meant by vectors, scalars, and so many definitions depending upon the vectors. So let us start. The first is today's linear combinations. What is meant by linear combinations? Yes, we know that linear combinations. I can take as the three vectors. Suppose vector A, vector B, and vector C. Vector A, vector B, and vector C. There are three vectors. Then linear combination of these three vectors is one of the vectors is the linear combinations of other two. Means I can here write as the vector C is the linear combination of vector A and B. Linear combination discussion yesterday period we will discuss. C bar is equals to A bar plus B bar. A, B, C are three vectors. C is the linear combinations of A and B. So to write as the C bar is equals to A bar plus B bar. This is the correct, is the linear combinations? Is not correct. So C is the linear combinations of A and B. Linear combinations is to vector multiply by scalar. What is the scalar? We know that scalar is a constant quantity. So C bar is equals to X and Y is the scalar. So X A bar plus Y B bar is equals to, means C bar is equals to X A bar plus Y B bar. X and Y is the scalars. C is called as the linear combinations of A. I can write as the Z is the linear combinations of AB. So write as the P A bar plus Q B bar, means Z is the linear combinations of AB. P and Q are the scalars. I can take as the three vectors, so many vectors. So write as a P, Q, R, C bar. Means Z bar is the linear combinations of A, B, and C. Again to take next scalars and again vector. This is the linear combinations. Okay, understand the linear combinations. Then suppose three vectors are linear combinations. Then these three vectors are vector A, vector B, vector C are coplanar. वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लानर. जब ये लीनियर कॉम्बिनेशंस रहेंगे, कोई भी तीन वेक्टर, कोई भी चार वेक्टर, तब जो भी वेक्टर्स है वो कोप्लानर रहेंगे. आप अंडरस्टैंड? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशंस. ओके, लीनियर कॉम्बिनेशंस के बाद क्या करेंगे हम? यह हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशंस. अभी मेन आज आपको पढ़ना है कि वेक्टर्स इन 2D एंड 3D. वेक्टर्स इन 2D एंड 3D. क्या है 2D एंड 3D? 2D मीन्स टू डायमेंशनल वेक्टर्स एंड 3D three-dimensional vectors. Two-dimensional vectors and three-dimensional vectors क्या होता है? We know that I can draw the two-dimensional vector. Take the x-axis and y-axis. This is x positive, y positive, x dash, x negative, y dash, y negative. This is the 0. Okay, then first quadrant I can take as the any point here. Such P is the two-dimensional geometry with the two coordinates x and y. We know that this is the first quadrant. Then left side is the second quadrant. नीचे वाली साइड थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट.
आपको पता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट हो, 2D आपने पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट हो तो क्या होता है, दोनों भी पॉजिटिव्स आ जाते हैं ना, एक्स की भी साइन पॉजिटिव की साइन बोला था। देन सेकंड क्वाड्रेंट आने के बाद ये एक्स नेगेटिव में आ गया, ये माइनस हो गया, वाई पॉजिटिव है ना, माइनस एंड प्लस। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं तो दोनों ही नेगेटिव होता है, और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आपका पॉइंट होता है तो पहला पॉइंट एक्स का पॉजिटिव हो जाएगा, वाई का नेगेटिव हो जाएगा, ये वाई डैश है नेगेटिव एक्सिस है ना। अभी ये 2D सिस्टम में क्या है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या हम पढ़ते हैं कि ये पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है, ये सबको पता है, पॉइंट कैसे लेते हैं क्या लेते हैं। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है ना, जैसे ये पी पॉइंट है एक्स वाई, कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलावा में आपका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और जे के इसको होता है यानी वाई एक्सिस पर होता है आपका जे कैप। फिर आपको ये जो O इज द ओरिजिन आपका 0 0 है, OP आपको OP डिस्टेंस निकालना है। आई कैन टेक एज द OP डिस्टेंस इज इक्वल्स टू P, आई कैन टेक एज द हियर P बार, P वेक्टर इज इक्वल्स टू P बार इक्वल्स टू X along X axis is your unit vector is the I, so here write as the X I cap, X I cap plus along Y axis is a unit vector is the J, Y axis is the scalar is the Y, Y J cap means आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो XI कैप प्लस YJ कैप ऐसा आएगा, बराबर। कोई भी क्वाड्रेंट में हो, ये आपने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। ओके, अभी यहाँ पर आपको पढ़ना है, ये 2D हो गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस 3 डायमेंशन ज्योमेट्री यहाँ पर 2D में आपको 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट मिलेंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट आता है पे एक्स वाई आता है तो 3D में कैसा पॉइंट आएगा, वैसे सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में एक्सेट्रा आपको ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर 3D में पढ़ना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ 3D। आई कैन टेक एज द एक्सिस, सो दिस एक्सिस is the y axis and not a z axis. I can take a z axis, this is your y axis, y पॉजिटिव z पॉजिटिव। जैसे अभी मैं यहाँ पर लेता हूँ, आपको 3D निकालना है, जैसे 2D है तो 2 एक्सिस है x एंड y, अगेन x नेगेटिव y नेगेटिव। यहाँ पर 3D है तो 3 एक्सिस होना जरूरी है, यहाँ पर ये y एक्सिस लिया मैंने, z एक्सिस लिया, एक एक्सिस लेना है मुझे, तो एक एक्सिस देखो अभी ये जो है आपका ब्लैक बोर्ड है ना, ये वाइट जो बोर्ड है 2D में आता है। जैसे ये रूम देखेंगे आप है ना, आप कोई भी रूम हो तो 3D में आते हैं, कैसे उसका जेड एक्सिस कैसे निकालेंगे। अब जेड एक्सिस मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताया, एक्स एक्सिस की डेफिनेशन बताया कि जैसे आप 2D पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है, 2 एक्सिस परपेंडिकुलर आते हैं। यहाँ पर 2 एक्सिस परपेंडिकुलर है, लेकिन तीसरा एक्सिस मैं कहाँ लेने वाला हूँ, समझो मैंने यहाँ पर ले लिया तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसे नहीं होता। 3D में आपने जैसे फोटोज वगैरह देखे होंगे 2D के 3D के, उसमें आपको पता है, आपको सब कुछ पता है इसके पहले, लेकिन एक्यूरेटली कैसे क्या रहता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये जेड एक्सिस मैंने यहाँ पर ले लिया तो ये परपेंडिकुलर में लेगा, 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस ऐसा नहीं होता। मुझे ब्लैक बोर्ड पर आपको पढ़ाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ आपका एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव। चलो ठीक है, यानी ये ऐसा नहीं होता, जैसे ये 2 एक्सिस है तो तीसरा एक्सिस ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। देखो मैंने जो आपको मार्कर पेन बताया है वो जो है, देखो अभी परपेंडिकुलर, देखो इसको ये परपेंडिकुलर है, इसको ये परपेंडिकुलर है, इसको ये परपेंडिकुलर है, और इसके पीछे चले जाओ, पीछे यानी इसके बोर्ड के पीछे तो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जाओ, ऐसे ही डायग्राम पीछे मिलेंगी है ना, यहाँ पर भी और पीछे भी। इसका जैसे ये एक्स वाई है, वाई को मैं ऐसे यहाँ पर कर दिया तो ये होगा, या हो जाएगा आपका वाई डैश हो जाएगा नेगेटिव वाई है ना। जैसे जेड को मैंने यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड डैश। एक्स को मैंने आपको नेगेटिव एक्सिस निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डैश।
समझ में आएगा कि एक्सिस एक दूसरे से कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, उसको आप 3D बोलते हैं। अभी 3D में जैसे यहाँ पर 2D में आपने सिंपली यहाँ पर स्टडीज किया, क्या किया यहाँ पर कि ये प्लस प्लस रहता है, ये चलते आ रहे 7वीं 8वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है नहीं। अभी 3D में जैसे यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट है, 2 एक्सिस है, तो आपको 4 क्वाड्रेंट मिले हैं। तो यहाँ पर कितने एक्सिस है, 3 एक्सिस है। एक एक्सिस में जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर 3 यानी क्या होता है 2 टू द पावर 3 यानी 8 है ना। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा 2 स्क्वायर यानी 4 क्वाड्रेंट तैयार हो गया है। वैसे यहाँ पर कितने हैं 2 टू द पावर 3 कितने 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस यानी एक इसमें जो भी कोई भी इसमें एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन कौन सा भी प्लेन हो 2 टू द पावर 3 यानी यहाँ पर आपके कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे 8 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने साइन देखा है कैसे है क्या है ये आपको पता है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर 8 क्वाड्रेंट होते हैं, उसको ऑक्टेंट बोलते हैं। 8 है इसलिए इसको ऑक्टेंट बोलते हैं। जैसे पहला ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है ना, वैसे ही जैसे अभी कौन सा भी पॉइंट है यहाँ पर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने P पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पर ले लिया था वैसे यहाँ पर P पॉइंट ले लिया। यहाँ पर P पॉइंट जैसे 2D में है, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये 3 में है, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट x, y और z। जैसे अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसकी साइंस क्या होंगी, सेकंड में होगा तो क्या होगी, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में और 8 में। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पर देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल है, ये भी याद रखना भी सिंपल है। आपको कोई भी क्वेश्चन है एमसीक्यूज है इसके ऊपर से आए तो आप लिख सकते हैं ये डायग्राम के ऊपर से। जैसे एक्स वाई जेड मैंने लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आपको सबको पता है कि सभी पॉजिटिव रहते हैं। जो 2D में है वही यूज करना है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, जेड ज़्यादा का आ गया, इतना ही आपको कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो पहले दोनों साइन क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। चलो तीसरा साइन बाद में ले लेंगे। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट हो तो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ये हो गए 4 क्वाड्रेंट आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी जो थर्ड वाला हो सिंबल कैसे लेंगे, उसका साइन कैसे लेंगे, डिनोट करेंगे, ऑक्टेंट का साइन कैसे डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स वाई मैंने पॉजिटिव लिया तो जेड का साइन क्या आ जाएगा। जैसे राइट हैंड रूल आपने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना। क्या है राइट हैंड रूल, आप जो भी है पहले 4 क्वाड्रेंट है एक साइड में है। जैसे आपकी फ्रंट साइड दिखेगी आपको, तो फ्रंट साइड में उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चले जाओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो भी आप चलते हैं चलते जाओ। चलते जाने से क्या हो जाएगा, पहले क्या आ जाए, जैसे मेरे पास 3D की डायग्राम होती तो मैं आपको क्लियरली बताता था, लेकिन यहाँ पर चलो ठीक है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा जेड एक्सिस है, आप ऐसे घूमते रहेंगे तो एक्स के जगह पर यहाँ पर देखो ये पूरे आपके फ्रंट के साइड दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जेड के पॉजिटिव जो है, ये जो है आपका राइट थंब, राइट हैंड जो भी है आपका है ना, राइट हैंड रूल से आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमो, आपको सभी ही जो है जेड के साइन पॉजिटिव मिल जाएंगे। जेड के साइन 3D में आपने देखे तो जेड के साइन सभी पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना इतना ही है कि जब आप फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट लेते हो तो जेड की साइन हो वो जेड के पॉजिटिव एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद जेड जो है, जेड ऊपर की साइड में, इसे फ्रंट साइड में रहेगा, सभी पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आया, समझ में आ गया आपको। ये मैंने कैसे लिया है साइन, पहले ये देखो 2D से लिए है ना, ये याद है हमको। और जब आप पहले 4 क्वाड्रेंट का साइन लेने वाले हो तो उसको क्या आएगा, पॉजिटिव जेड यानी जेड की जो साइन है वो क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। जैसे सेकंड इसमें आपको लेना है तो ये अभी नीचे वाली है, बैक साइड, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। तो जो इसका 5वां क्वाड्रेंट होता है, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। वैसे ही जैसे यहाँ पर आपने साइन ले लिया प्लस प्लस, देखेंगे आप यहाँ पर, और माइनस प्लस, उसके बाद में माइनस माइनस, उसके बाद में
प्लस माइनस। चलो ठीक है, तो ये आपने पॉजिटिव डायरेक्शन दे दिया, पॉजिटिव जेड एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैसे ही आप जब 5वें 6वें 7वें 8वें क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि वो निगेटिव डायरेक्शंस में, यानी जेड डैश है यानी निगेटिव एक्सिस है, निगेटिव एक्सिस यानी माइनस हो जाता है। माइनस होने के बाद यानी पता चलेगा आपको कि ये क्या आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। ये हो गया आपके ऑटो क्वाड्रेंट के साइन। आया समझ में, है ना? सिंपल है ये थिंकिंग, जो आपको रखना याद रखना है, ये सिंपल थिंकिंग है, ये आप ये सभी कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। ये हो गया आपका 2D ओवर 3D का क्लियर आपके लिए। ये कैसे क्वाड्रेंट कितने आते हैं, क्या आते हैं, इससे और इससे आपको पता चलेगा। अभी जैसे कौन सा भी पॉइंट हो, है ना, जैसे आप यहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं, इसका OP निकालना है आपको, है ना। OP कैसे निकालते हैं, OP बार, है ना, उसको P बार नाम देते हैं, स्मॉल p बार। OP कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ, ये पॉइंट जो है ये 0 0 पॉइंट है आपका, इसको डिस्टेंस फार्मूले से आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या करेंगे, x माइनस 0 यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका डिस्टेंस आएगा। इसका डिस्टेंस आपको निकालना है, समझो ये O पॉइंट है, ये OP आपको निकालना है, तो OP बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आ जाएगा ना। क्लियर। अभी जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, समझो कोई भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर आपका पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स पॉइंट, एक्स पर आपके कोऑर्डिनेट है तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसका पॉइंट हो जाएगा एक्स पर है यानी एक्स आएगा, बिकॉज अदर पॉइंट्स आर 0, है ना, दूसरे का संबंध नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये एक्स, ये जो पॉइंट लिखना है आपको, तो एक्स का डिस्टेंस समझो कुछ भी हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन वाई तो 0 आएगा, है कि नहीं। आपका कोई भी पॉइंट कोई भी एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पे हो, एक्स का पॉइंट आएगा, अदर 0 आएगा। वाई पर होगा तो वाई का पॉइंट आएगा, यानी 0 वाई 0 आया समझ में। वाई एक्सिस पे रहने के बाद 0 वाई 0, जैसे जेड एक्सिस पे रहने के बाद 0 0 एंड जेड। ओके, ये हो गया एक्सिस पर पॉइंट रहने के बाद। जैसे मैं अभी यहाँ पर लेता हूँ, समझो कि आपका जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में है, ये जो प्लेन है पहला वाला, ये एक्स वाई प्लेन में आपका पॉइंट है। तो एक्स वाई प्लेन में आपका पॉइंट होने के बाद जब एक्स वाई प्लेन में पॉइंट रहेगा तो आप कैसे लेंगे, यहाँ पर दो प्लेन में, यानी एक्स और वाई का आएगा, एक्स और वाई आ जाएगा और बाकी का 0 आ जाएगा। यानी जैसे आप यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, देखो आपका पॉइंट ये हो गया y, ये हो गया z, ये हो गया x, है ना। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो मैंने 3D में पॉइंट लिया था उसका, अभी यहाँ पर मैं 3D नहीं निकाल रहा हूँ, जस्ट 3D, लेकिन बट यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ऐसे बता रहा हूँ कि YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में है। समझो जो आप दीवार जो रहती है ना कॉर्नर में, देखो 3 वहाँ पर 3 एक्सिस होते हैं, x y और z, तीनों परपेंडिकुलर होता है। अब x मैंने ये तो यहाँ पर ले लिया तो क्या हो जाएगा, YZ प्लेन में जो आपका पॉइंट होता है, जैसे YZ प्लेन आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये x 0 हो जाएगा, y आ जाएगा और z आ जाएगा। एक्स वाई प्लेन में हो तो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, x, y आ जाएगा, z 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड प्लेन में है तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई 0 एंड जेड, ऐसे पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद में डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तो मैंने निकाल दिया है। अभी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, किसी भी एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे लेंगे, जैसे पी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं पी पॉइंट लेता हूँ, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ऐसे मैं बोलता हूँ पी पॉइंट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी ए, आपको पी ए निकालना है। पी ए कैसे निकालेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू, पी ए कैसे निकालेंगे, है ना। जब पी ए निकालना है तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, पी ए यानी एक्स का डिस्टेंस एक्स से एक्सिस से नहीं है तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा,
अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे है यानी वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, बिकॉज ऑफ ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता तो इससे डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, y पे है तो कैसे निकालेंगे, y पे है तो एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर पढ़ाने है और एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। अभी जैसे कोई भी वेक्टर्स हो, है ना, कोई भी वेक्टर्स हो, कौन सा भी वेक्टर्स हो, वो वेक्टर्स किसी भी इसमें लिखना है आपको, तो उसको आप बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं। कंपोनेंट वेक्टर आर से डिनोटेट करते हैं, एक्स वाई जेड एंड कोई भी हो, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं पर, 3D में आपका कंपोनेंट वेक्टर है, तो आर बार को आप ऐसे लिखते हैं ए आई कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, एक्स वाई जेड को आप क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड को आप बोलते हैं कंपोनेंट अलाउंग टू द ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस। इसके बारे में 2D 3D और जो भी आपने थ्योरम्स पढ़े हुए हैं, थ्योरम्स आज डिस्कशन नहीं किए मैंने, नेक्स्ट पीरियड में मैं डिस्कशन करूँगा और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1। ओके बाय।